إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ساری تعریف، ساری بڑائی، ساری عبادات، ساری حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس اللہ ذات اکبر کے لیے ہے جو بڑا ہی بے مثال، بڑا ہی باکمال ہے، بہت محبت کرنے والا، جس کی محبت میں بے وفائی نہیں، اور بہت ہی سچے وعدے کرنے والا جس کی سچائی میں کوئی شک نہیں. اس اللہ رب العالمین کے لیے، اس اللہ کی رضا کی خاطر ہم یہاں اس کے گھر میں جمع ہو کر بیٹھے ہیں. ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری عبادتیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ ہے، جو دلوں کا بھید جانتا ہے، جو ہر چیز پر اپنی قدرت رکھتا ہے، جس کے قبضے قدرت میں تمام مخلوقات کی جان ہے. ہم سب عاجز، حقیر اور فقیر ہیں. وہ اللہ غنی ہے. ہم مرنے والے، فنا ہونے والے، مٹنے والے مخلوق میں سے ہیں. وہ حی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں. وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں. وہ یکتا ہے اور سب سے قدرت والا ہے، اور ہم سب اس کے مجبور اور اس کے پیدا کردے مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہیں. ہم اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہو کر قرآن اور حدیث کی باتیں سننے سنانے کی غرض سے بیٹھے ہیں. اللہ رب العالمین کا اس بات پر بے انتہا شکر و احسان ہے. فللہ الحمد وللہ الشکر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نازل ہو، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج 12 اگست 2023 بروز سنیچر سٹرڈے مسجد عمر فاروق اہل حدیث بھونگیر، جو حیدرآباد سے 65 سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اس گاؤں بھونگیر میں والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کیا انعام ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنے کا کیا انجام ہے، اس عنوان پر میں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے کبر و غرور سے محفوظ کرتے ہوئے اخلاص و للہیت کے ساتھ کتاب و سنت کی دعوت پیش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ سورہ نساء کی 36 نمبر کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. تم ایک ایسے اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
اللہ کی توحید کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد جس بات کا اللہ نے حکم دیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے والدین سے بڑھ کر، تمہارے اولاد سے بڑھ کر، پوری دنیا سے بڑھ کر میں تمہارے پاس محبوب مقرب نہ بن جاؤں۔ سب سے بڑا درجہ محبت کی معیار کا اللہ عز و جل ہے۔ اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے بعد پوری دنیا میں اگر کسی کا سب سے بڑا مرتبہ اور درجہ ہے تو وہ ہمارے والدین کا درجہ ہے، ہمارے ماں باپ کا درجہ ہے۔ ہمارے ماں باپ سے ہم محبت کریں، ہمارے ماں باپ کی ہم خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کا دل نہ دکھائیں اور ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنیں، مرتے دم تک ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کو سنواریں۔ اس بات کی تعلیم اللہ ہم کو دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی 21ویں آیت میں کہتا ہے انظر کیف فصلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفصیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انہی میں سے بعض کو بعض پر کیسے فضیلت دے رکھی ہے، یقیناً آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت بڑی ہے، فضیلت کے لحاظ سے بہت بڑی ہے۔ یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر بڑی فوقیت اور فضیلت دے رکھی ہے۔ ان میں والدین کا بہت بڑا درجہ ہے، والدین کا بہت بڑا مقام ہے ہمارے سامنے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی 23ویں آیت میں جب بنی اسرائیلیوں کو حکم دیا تھا ان نیکیوں کا کہ اے بنی اسرائیلیوں اپنے اللہ کی، ایک اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، فضول خرچی نہ کرو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زمین میں اکڑ اکڑ کے تکبری سے مت چلو، تم لوگ ناپ تول میں کمی پیشی نہ کیا کرو، اپنی آواز کو زیادہ اونچائی کے طور پر چیخ مت مارو۔ یعنی جن جن اخلاق رذیلہ سے، گناہ کبیرہ سے اللہ نے ان کو منع کیا تھا وہ لوگ نہیں مانے، اپنے انہی برائیوں میں ملوث رہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا سے عبرت کا نشان بنا کر طرح طرح کے عذابات سے دنیا سے دوچار کر کے ملیا میٹ کر کے نکال دیا۔ کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی جوؤں کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، کبھی قحط سالی کا عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کے عذابات دے کر دنیا سے دوچار کر کے عبرت کا نشان بنا دیا۔ وہی نصیحتیں 15ویں پارے کے سورہ بنی اسرائیل کی شکل میں امت محمدیہ سے اللہ کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں یہ تمام نصیحتیں بنی اسرائیل کو کیا تھا، بنی اسرائیل ان نصیحتوں پر عمل نہ کر سکی، میں نے ان کو برباد کر دیا۔ اے امت محمدیہ، بنی اسرائیل کی طرح تم بھی نافرمان مت جانا، نافرمان بن مت جانا، نافرمانی سے بچنا۔ کون کون سی برائیوں سے اللہ بنی اسرائیل کو بچنے کی تعلیم دیا تھا، ان تمام برائیوں کو بنی اسرائیل کے سورہ بنی اسرائیل کے 2ویں رکوع سے لے کر 3رے رکوع تک کے درمیان میں ان تمام اخلاق رذیلہ کا ذکر کیا، جن میں سے یہ ایک آیت اللہ کہتا ہے 23ویں آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔
इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरु अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्यु वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अगर वो दोनों माँ बाप में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे तक पहुंच जाएं, उनके सामने उफ तक ना कहना, उनके सामने उफ तक न कहना। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहता है वला तनहरहुमा, उनसे झिड़क के बात ना करना। वो कुल्लहुमा कौलन करीमा, उनके सामने बड़ी आजिज़गी से गुफ्तगू करना, बड़ी नरमी से गुफ्तगू करना। वकुल्ना कौलन करीमा, क्या मतलब है इसका? जब इस आयत के बारे में वकुल्ना कौलन करीमा, इस आयत के बारे में हसन बसरी से पूछा गया कि कुल्ला कौलन करीमा से क्या मतलब है, वो कहते हैं एक आका के सामने गुलाम जैसे बात करता है, आजिज़गी से, नरमी से, इनकिसारी से, अपने सर को झुकाए हुए खामोशी से, पस्त आवाज में जैसे बात करता है, वो अंदाज है वो कुल्ला खौलन करीमा। अपने वालिदैन से बात ऐसे करो, अल्लाह वो सिखाना चाहता है। जैसे एक नौकर अपने मालिक के सामने, एक गुलाम अपने आका के सामने किस तरह हाथ बांध के आजिज़गी से निगाहें नीचे करके नरमी से बात करता है, वो तरीका है वो कुल्ला कौलन करीमा। अपने वालिदैन से तुम ऐसे बातें करो। लेकिन आज के माँ बाप के सामने उनकी औलाद कैसे बात करती है? सीना तान के, आंखों में आंखें डाल के, घूर घूर के, चीख मार मार के ऐसे बात करते हैं औलाद। वालिदैन अपने औलाद से बात करने भी घबराती। मेरा बच्चा कहाँ क्या चीख मारता कि, कहाँ मेरे ऊपर गुस्सा करता कि, कहाँ मेरे सामने ऊंची आवाज में मुझे झड़कता कि। अरे डरना तो औलाद को चाहिए, लेकिन डर रहे हैं आज माँ बाप अपनी औलाद से बात करने के लिए। गलत है ये तरीका। अपने वालिदैन की कदर कीजिए। याद रखो दुनिया की तमाम दौलत आपको मिल जाएगी, लेकिन वालिदैन एक बार अगर मरकर दुनिया से गुजर गए, सारी दुनिया की दौलत देकर भी अपने वालिदैन को खबर से जिंदा करके वापस नहीं ला सकते। जो मोहब्बत, जो प्यार तुम्हारी माँ तुमको दे सकती है, सारी दुनिया की औरतें मिलकर माँ की ममता तुम्हारी माँ जैसी दूसरी कोई औरत नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब क्या? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बोले तो माँ के पैरां पड़ो नहीं है, माँ के पैरां पड़ को माँ के पैरां को बोसा दो ये नहीं है। उनकी खिदमत करो, उनकी इताअत करो, उनकी फर्माबरदारी करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि तुम्हारा बाप जन्नत के दरवाजों में दरमियान का दरवाजा है। अपने बाप की नाफरमानी ना करो, बाप की कदर करो। जब तक वालिदैन जिंदा रहते हैं माँ बाप की कदर बच्चे नहीं करते। जब बाप मर जाता है, माँ मर जाती है, तब पछताते हैं कि हमने ये क्या कर दिया, हमने ये क्या कर दिया। मेरे भाइयों, अबू दाऊद की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक सहाबी एक गज़वे में जा रहे थे, तो उन्होंने एक दरख्त से एक परिंदे के घोंसले को उठा लिया जिसमें उस चिड़िया के छोटे छोटे चूजे बच्चे थे, ची ची कह रहे थे। उन चूजों के घोंसलों को वो सहाबी निकाल कर अपने रुमाल में छपा लिए और लश्कर के साथ, सहाबा के साथ जाने लगे। उन बच्चों की जो माँ थी, उनकी जो वालिदा थी, वो परिंदा उसी सहाबी रसूल के सर के ऊपर घूम रही थी। वो परिंदा न दाएं न बाएं न आगे न पीछे कहीं नहीं जा रहा था। वो परिंदा बराबर उस सहाबी के सर पर उमंडला रहा था। काफी देर से सहाबा देख रहे, उन्हीं के सर पे जहां वो जाते हैं उन्हीं के सर पे वो परिंदा घूमता रहता है। नबी अलैहिस्सलाम देखते हैं माजरा क्या है, ये परिंदा उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। नबी ने पूछा, क्या तुमने इसके साथ कुछ छेड़खानी की है? क्या तुमसे उसे कुछ तकलीफ पहुंची है?
क्यों ये परिंदा तुम्हारे ऊपर उड़ रहा है, कहीं नहीं जा रहा, बार बार तुम्हारे नजदीक आता है। कहा अल्लाह के नबी, मैंने उसके घोंसले को निकाल लिया है, उसके घोंसले में छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, मैंने निकाल लिया है, इसीलिए वो परिंदा मेरा पीछा कर रहा है। नबी अलैहिस्सलाम गज़बनाक हो गए, गुस्सा करने लगे, ये तुमने क्या किया? फौरन उसके बच्चे को, उसके चूजे, उसके घोंसलों को नीचे रखो और पीछे हटो, उसकी माँ के हवाले करो। वो सहाबी रसूल अपनी चादर हटाकर वो घोंसले को जमीन पर रखकर पीछे हट जाते हैं। वो माँ, वो परिंदा तमाम सहाबा के बीच में आकर लपक कर अपने घोंसलों पर, अपने बच्चों पर लपक कर बैठ जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ये मंजर देखकर सहाबा से कहते हैं, ये देखो इस माँ को, इस माँ को मालूम है कि हम इंसान जब परिंदे को पकड़ते हैं तो शिकार करके काट कर खा जाते हैं, लेकिन वो माँ अपने जान की परवाह किए बिना किस तरह अपने बच्चों पर शफकत लुटाए लपक कर बैठी है। उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं, अपने मरने का भी उसे डर नहीं, किस तरह वो अपने बच्चों पे लपक के बैठी है। मेरे सहाबा, जितना ये परिंदा अपने बच्चों से मोहब्बत कर रहा है ना, इससे हजारों लाखों गुना ज्यादा अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करता है, हमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। बताना मकसद ये है कि वो परिंदा अपने बच्चों पे जान लुटा रहा है, जान छिड़क रहा है, अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। ये सिर्फ परिंदों का नहीं, दुनिया की हर माँ, हर वालिद अपने बच्चों पर इसी तरह जान छिड़कता है। तुम खुद अपने बच्चों की मिसाल देख लो। आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारे आंखों का तारा है, तुम्हारे दिल का सुकून है। तुम्हारे बच्चों को कुछ हो जाए तुम्हारा दिल बेकरार हो उठता है। तुम्हारे बच्चों की खातिर तुम रात रात जागते हो। अपने बच्चों की तबीयत अगर बिगड़ जाए तो वालिदैन के नींद हराम हो जाती है, उनका चैन और सुकून हराम हो जाता है। सुकून से वो खा भी नहीं सकते जब तक बच्चा ठीक ना हो जाए। बच्चे का रोना, बच्चे का बिलबिलाना, बच्चे की बीमारी की तकलीफ माँ बाप को इतनी अजियत देती है, गोया बच्चे को जितनी तकलीफ होती है उससे दुगना तकलीफ वालिदैन को होती रहती है। आज तुम वालिदैन होकर अपने छोटे बच्चों की शफकत और मेहरबानी तो समझ रहे हो, ये भी सोच लिया करो कभी तुम छोटे थे तो तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे लिए इतने ही बेचैन हुआ करते थे, इतने ही वो तुम्हारे लिए बेकरार हुआ करते थे। तुम्हारे लिए रातों को जाग जाग कर वो तुम्हारे इलाज की फिक्र करके दुआएं पढ़ पढ़ के दम किया करते थे। ये फिक्र करके अपने वालिदैन की खिदमत करो। आज तो मजबूत घर आ गए, आज तो दौलत की फरावानी आ गई। हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे नाना, उनकी जिंदगी बड़ी गुर्बत वाली जिंदगी थी, बहुत झोपड़पट्टियों की जिंदगी थी। बारिश का मौसम आता तो पूरा घर ची उड़ता था, वहां से बारिश का पानी टपकता था। वो रात भर जाग कर तुमको सूखी जगह सुलाते थे, खुद बारिश में भीगते बैठते थे। क्या भूल गए ये तमाम अय्याम? मेरे भाइयों, वालिदैन का इतना बड़ा दर्जा है, इतना बड़ा दर्जा है। अगर कोई इंसान जिंदगी भर अपने वालिदैन की खिदमत करे तब भी उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में सूरह लुक़मान की 14 और 15 नंबर आयत में बयान फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अन इश्कुरू ली व लिवालिदैका इलैयल मसीर। और हमने वसीयत की इंसान को कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। क्यों? हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, इसलिए कि उसकी माँ ने हमल के अय्याम में दर्दों पर दर्दें बर्दाश्त कर करके 9 माह तक अपने पेट में तुमको उठाया, इसीलिए उनके साथ उसने सलूक करे। वो फिसालुहु फी आमैन, और उनके दूध पिलाने के अय्याम भी 2 साल के होते हैं। 2 साल तक माँ दूध पिलाती है। कोई माँ 1.5 साल भी पिलाती है, कोई माँ 1 साल भी पिलाती है, क्योंकि वो दूसरे साल फिर से हामिला बन जाती है, उसका दूध रुक जाता है। लेकिन आम तौर पर अल्लाह कहता है वो फिसालुहु फी आमैन, 2 साल तक अपने सीने के खून को दूध बनाकर वो तुमको पिलाती है। आप समझते होंगे
माँ के सीने से बच्चा दूध पी रहा, लेकिन आ रहा कहाँ वो दूध आ रहा कहाँ से? जब माँ कुछ खाती है उस खाने से खून बनता है, उस खून को अल्लाह ताला दूध में तब्दील करता है और बच्चे की ग़िज़ा बना के देता है। कई एक निवाले माँ खाती है अपने ग़िज़ा को, बच्चे के लिए खून से दूध की वो ग़िज़ा, जो माँ के सीने के दूध में जो ग़िज़ा है, दुनिया के किसी डब्बे के अंदर, दुनिया के किसी प्रोटीन के अंदर, दुनिया के किसी सेरोलैक के अंदर या दुनिया के किसी डब्बे के अंदर वो एनर्जी, वो विटामिन, वो कैल्शियम और वो ताकतवर ग़िज़ा नहीं है जो माँ के दूध में अल्लाह ताला बच्चों के लिए ताकत की ग़िज़ा रखा है। मासूम बच्चे के हड्डियों में जो मजबूती आती है, उसके दिमाग की, उसके बदन की, उसके तमाम आज़ा की, वो तमाम मख़वी ग़िज़ा अल्लाह उसके माँ के दूध के अंदर रखा है। शायर कहता है, तिफ़ल में बू आए कहाँ माँ बाप के अतवार की। तिफ़ल बोलती बच्चे को, तिफ़ल में बू आए कहाँ, बू का तो खुशबू, तिफ़ल में बू आए कहाँ माँ बाप के अतवार की। दूध तो डब्बे का है, तालीम है सरकार की, सरकारी तालीम देकर डब्बे का दूध पिलाएंगे तो माँ बाप की खिदमत की उसके अंदर बू कहाँ से आएगी? मेरे भाइयों, फिर अल्लाह ताला आगे कहता है, इन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा वसाहिबहुमा। अगर तेरे माँ बाप अल्लाह की ज़ात में कुफ्र या शिरक करने की तालीम तुझे देते हैं, फला तुतिअहुमा वसाहिबहुमा, तो उन दोनों की इताअत हरगिज़ ना किया कर, वालिदैन की खिदमत कर, लेकिन शिरक के मामले में उनकी बात ना सुना कर। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला मासियतन ला ताअतन लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में पूरी दुनिया में किसी की इताअत तुम्हारे पर वाजिब नहीं, चाहे तुम्हारा उस्ताद, चाहे तुम्हारे माँ, चाहे कोई भी तुमको अल्लाह की नाफरमानी की अगर तालीम देते हो, हुक्म देते हो, तो तुमको इस बात की इजाजत नहीं है कि तुम उनकी इताअत करके अल्लाह के साथ कुफ्र और शिरक करो। जायज़ नहीं है उनकी इताअत करना। फिर क्या किया जाएगा? फला तुतिअहुमा वसाहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, दुनिया में मारूफ तरीके से उनकी उस बात में तुम इताअत मत करो। फिर क्या करो? लेकिन उनकी खिदमत करो। अगर तुम्हारे माँ बाप काफिर भी क्यों ना रहे, इस्लाम उनकी खिदमत कर कर उनके साथ हुस्ने सुलूक करने की तालीम देता है। अबू बकर सिद्दीक की बीवी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की माँ अभी इस्लाम नहीं लाई थी, वो उनके घर आती हैं। हज़रत अस्मा कौन इनो? नबी अलैहिस्सलाम की साली, अम्मा आयशा की बहन। वो आकर कहती हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी माँ आई है जो इस्लाम नहीं लाई, आपको नबी नहीं मानती, अल्लाह को अल्लाह नहीं मानती, काफिरा है, मेरे घर आई है, मैं क्या करूं? नबी अलैहिस्सलाम कहती हैं, वो तेरी वालिदा है, उनके साथ हुस्ने सुलूक करना तेरी जिम्मेदारी है, जाओ उनके साथ हुस्ने सुलूक करो। वालिदा वालिदा होती है, वालिद वालिद होता है। माँ बाप भले ही काफिर रहे, मुशरिक रहे, उनकी खिदमत करने का इस्लाम हमको हुक्म देता है। अरे इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, माँ बाप तो सबसे बड़ा दर्जा रखते हैं अल्लाह और उसके रसूल के बाद। हमारा मजहब इस्लाम जानवरों के साथ भी हुस्ने सुलूक करने की तालीम देता है। किसी कुत्ते को नाहक अगर कोई मारता है, किसी बिल्ली की नाहक कोई जान लेता है, इस्लाम एक बिल्ली की जान लेने वाली इबादत गुजार औरत को जहन्नमी करार दिया। और इस्लाम एक ऐसी औरत जो कुत्ते पर तरस खाकर पानी पिलाने की वजह से, हुस्ने सुलूक करने की वजह से उसके जिना जैसे कबीरा गुनाह को माफ करके जन्नत में दाखिले की अल्लाह बशारत दिया। इस्लाम जानवरों के साथ भी हुस्ने सुलूक करने की तालीम देता है। हम तो इंसान हैं, इंसानों में बड़ा दर्जा अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए हमारे वालिदैन का रखा है, वालिदैन का रखा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक सहाबी रसूल आते हैं और आकर सवाल करते हैं, जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला, वो सवाल करते हैं, मन अहक़्क़ु बिहुस्नि सिला, ऐ अल्लाह के नबी,
मेरे हुस्न सुलूक का ज्यादा हकदार कौन है? सही बुखारी किताबुल बिर्रिल वालिदैन, किताबुल बिर्रि वस्सिला, किताबुल बिर्रि बाबु बिर्रिल वालिदैन के अंदर हदीस नंबर 5970 पर 1 और 1180 पर 6 बुखारी की हदीस में वो कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, मेरे हुस्न सुलूक का ज्यादा हकदार कौन है? नबी कहते उम्मुका, तेरी माँ। अय अल्लाह के नबी, उसके बाद मेरे हुस्न सुलूक का ज्यादा हकदार कौन? कहते हैं तेरी माँ। अय अल्लाह के नबी, उसके बाद कौन? कहते हैं तेरी माँ। अय अल्लाह के नबी, उसके बाद कौन? चौथी बार नबी जवाब देते हैं तेरा बाप। अबू का तेरा बाप। 3 मरतबा नबी कहते हैं तेरी माँ, चौथी बार कहते हैं तेरा बाप। क्यों? इसलिए कि माँ का दर्जा बाप से 3 गुना ज्यादा होता है। माँ 9 माह तक अपने पेट में रखती है, दर्दों पे दर्दें बर्दाश्त करती है और जिंदगी और मौत के कश्मकश में बच्चे को जन्म देती है, विलादत करती है। ज़चकी के अय्याम में जिंदगी और मौत के कश्मकश में वो लड़ती है, वो दर्दें बर्दाश्त करके देती है, अपने बच्चे को दुनिया में लाती है। अल्लाह के नबी कहते हैं तेरी हुस्न सुलूक का एक पहला हक तेरी माँ का, दूसरा हक तेरी माँ का, तीसरा हक तेरी माँ का, चौथा हक तेरे बाप का। आज के बच्चे माँ के उस एहसान को भूलते हैं और बेपरवाही से बात करते हैं, झिड़क झिड़क के बात करते हैं। कभी सास बहू में इख्तिलाफ हो गया, कभी अपनी बीवी और अपनी वालिदा के बीच में बहस हो गई, सास बहू के बीच में कुछ अनबन हो गई, तो बिना सोचे समझे अपनी बीवी की तरफदारी लेकर माँ को झड़कता है, माँ को गाली गलौज करता है, माँ को अपनी बीवी के सामने जलील करता है। अरे तेरी बीवी कल परसों आई सो भाई, कल परसों आई उन्हें, तेरी बीवी तलाक ले को गई तो दूसरी बीवी आ सकती है, तेरी बीवी तेरे से खुला ले ली तो तू और एक शादी कर सकता, लेकिन तेरी माँ अगर दुनिया से चली गई तो क्या तू दूसरी माँ ला सकेगा? अपनी बीवी की तरफदारी लेकर माँ से झगड़ा करने वाले, अपनी बीवी के सामने कल परसों की लड़की के सामने खड़ा करके बुजुर्ग वालिदा को जलील करने वाले, अल्लाहु अकबर, ये वही लोग करते हैं जिनके पास इस्लाम की नॉलेज नहीं होती, दीन की तालीम नहीं होती, अल्लाह का डर नहीं होता, आखिरत की पकड़ का खौफ नहीं होता। ऐसे ही नादान, ऐसे ही जाहिल लोग अपनी वालिदा को गिरा के उनका दिल दुखा के बात करते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला सही बुखारी और मुस्लिम किताबुल मनाकिब की हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि एक आदमी है, इन्ना खैरत ताबिईन, इन्ना खैरत ताबिईन, ताबिईन में से बेहतरीन एक आदमी है, युकालु लहू उवैस, उसका नाम उवैस है, वलहू वालिदा, उसकी एक बूढ़ी वालिदा है, वकान बिही बयाजुन, उसके बदन पर एक सफेद निशान है, फमर्रतु फल्यस्तगफिर लकुम, अगर वो तुम्हारे पास से गुजरे तो तुम उससे मगफिरत की दुआएं करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर बिन खत्ताब से ये जुमला कहते हैं, ऐ उमर, आज भी मेरे जमाने में मुल्क यमन में खरन नाम का एक बस्ती है, उस खरन बस्ती में एक आदमी रहता है, उसका नाम उवैस खरनी है, उसकी एक बूढ़ी वालिदा है, वो मेरे ऊपर ईमान लाया है, मेरी मुलाकात का शर्फ अपने दिल में बहुत रखता है, मेरी मुलाकात का शौक अपने दिल में ज्यादा रखता है, लेकिन उसकी माँ को छोड़कर मेरे पास आने उसे नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि उसकी बूढ़ी माँ बिस्तर के लायक है, उसे खिलाना, रोजाना खिलाना पिलाना और उसका पेशाब पाखाना साफ करना और घर में उसके कपड़े धोकर डालना, उसके लिए खाने पानी का इंतजाम करना, वो तमाम खिदमत करने वाला उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। मुल्क यमन की जो खरन बस्ती है, वहां से मदीने मुनव्वरा का सफर 15 से 20 दिन का सफर है, आने में 15 दिन, जाने में 15 दिन, 1 माह तक अगर वो मेरी मुलाकात के लिए निकला तो उसकी वालिदा की देखभाल करने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं है।
वो अपनी वालिदा की खिदमत करने में इतना मशगूल है और अपनी वालिदा का इतना बेहतरीन फरमाबरदार बेटा है, अल्लाह ताला उसके इस फरमाबरदारी की वजह से उससे मुस्तजाबुद दावत बना दिया। मुस्तजाबुद दावत बना दिया। किसे कहते हैं मुस्तजाबुद दावत? मुस्तजाबुद दावत उस इंसान को कहते हैं जिसकी हर दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। मुस्तजाबुद दावत जिसकी हर दुआएं मेरा मौला कबूल करता है, एक भी दुआ उसकी रद्द नहीं होती। वो जो मांगेगा मेरा अल्लाह उसे देगा, उसे कहते हैं मुस्तजाबुद दावत। अल्लाह ने उस उवैस करनी को उसकी वालिदा की खिदमत की वजह से उसे मुस्तजाबुद दावत बना दिया। ऐ उमर, मैं अभी कह रहा हूं तुझे, वो मेरे जमाने में तो नहीं आ सकेगा, तुम्हारे जमाने में आएगा। मुल्के यमन से जो भी काफिला आए, पूछना करन बस्ती से कोई तुम्हारे काफिले में है क्या? अगर लोग कहें, यमनी काफिले के लोग कहें हाँ खरन बस्ती का ये आदमी भी हमारे साथ है, उसे पूछना तुम्हारा नाम उवैस है क्या? उवैस करनी मतलब खरन बस्ती वाला, उवैस तुम्हारा नाम है क्या पूछना। अगर वो कहे हाँ मैं ही उवैस हूं, उसके बदन को चेक करना। 1 दीनार के बराबर, 1 दिरहम के बराबर उसके बदन में सफेद निशान, बरस का निशान बोलते नहीं हम लोग, सफेद, वो सफेद निशान रहेगा। वो निशान तलाशना। अगर वो निशान मिल जाए, यही वो उवैस है जिसके बारे में मैं तुमको आज पेशन गोई दे रहा हूं। जब वो उवैस करनी तुम्हें मिल जाए, ऐ उमर, उसे अपने सामने बिठाकर खूब दुआएं करा लेना, क्योंकि उसकी कोई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। वो अल्लाह की नजर में बड़ा मुस्तजाबुद दावत है। ये शर्फ अल्लाह उसकी वालिदा की खिदमत की वजह से उसे दिया है। वालिदा की खिदमत करें, इतना बड़ा दर्जा अल्लाह जब हमको देगा, हम अपने वालिदा को झिड़क कर, उसके दिल को ठेस पहुंचा कर, उसके आंखों से आंसू निकाल कर कौन सी इबादत करके मुसलमान बनोगे जी तुम? अल्लाह की कसम, वालिदा की अगर दिल दुखाए, वालिद का अगर दिल दुखाए, तुम्हारे माँ बाप के आंखों से अगर तुमने जुल्म और ज्यादती करके उनके आंखों से आंसू निकाले, उनका दिल नाराज करता रहे, कसम रब्बे काबा की, अल्लाह अज़्ज़ा व जल एक भी नेकी तुम्हारी कबूल नहीं करेगा, एक नेकी तुम्हारी नामा अमाल में जमा नहीं करेगा। उस इंसान की नेकियां सत्यानाश कर दी जाती है जो अपने वालिदैन को नाराज करके अल्लाह के सामने नेक अमाल करने लगता है। कोई नेकी अल्लाह कबूल नहीं करता उसकी। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, एक यमनी आदमी यमन से आया हुआ था और मैं काबतुल्लाह में उस वक्त मौजूद था। वो यमन से आने वाला आदमी अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधे पर उठाया हुआ यमन से चलते आ रहा है और मक्के में आकर काबतुल्लाह में काबे का तवाफ कर रहा है और वो अल्लाह के सामने रो रो कर कह रहा है, या अल्लाह ये मेरी वालिदा है, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर, या अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा। जब लोगों से पता चला कि यहाँ के बड़े आलिम कौन है, कौन अहले इल्म में से कोई सहाबी रसूल, हाँ ये है सहाबी रसूल है, अब्दुल्लाह इब्न उमर है। अच्छा, ये अब्दुल्लाह इब्न उमर है। वो आकर यमन का आदमी अपनी बूढ़ी माँ को जो चल नहीं सकती अपने कंधे पर ढोकर लाया है यमन से, काबतुल्लाह में हज करा रहा, तवाफ कर रहा काबतुल्लाह के, और वो पूछता है, अरे अब्दुल्लाह इब्न उमर, मैं वहां से उठा लाया हूं मेरी माँ को, काबतुल्लाह के तवाफ कराया, क्या इतनी बड़ी खिदमत करने के बाद, मेरी माँ को हज कराने के बाद, मेरे कांधों पर ढोकर लाने के बाद, क्या मेरी माँ का हक मैंने अदा कर दिया? अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, अरे अल्लाह के बंदे, तेरी माँ ने 9 महीने तक तुझे जो पेट में रखकर जिंदगी और मौत के दर्दों से जो तुझे जन्म दी, दुनिया में ज़चकी के दर्दां बर्दाश्त करके जो तुझे पैदा की, वो डिलीवरी के वक्त जो चीखा उसने मारा, जो आह उसने भरी, उन चीखों में से एक चीख का भी हक तूने अदा नहीं किया। तेरी वालिदा को यमन से ढोले का को हज कराया तो भी एक चीख का हक अदा नहीं किया जो तुझे डिलीवरी
डिलीवरी के वक्त उसने अपनी जिंदगी के कश्मकश में दर्दें बर्दाश्त करके जो तुझे दुनिया में लाई, उन दर्दों में से एक दर्द का एक चीख का तूने हक अदा नहीं किया, तू क्या उसका हक अदा करेगा? लोग समझते हैं अपनी वालिदा को जरा कमरे में क्या बिठा दिए, अच्छा खाना क्या ला को दे दिए, उनके लिए व्हील चेयर का क्या इंतजाम कर दिए, 4 डॉक्टरों के पास स्कैनिंग करके जरा दवाई क्या ला को दे दिए, मैं मेरी माँ का हक अदा कर दिया। तू क्या भाई करेंगा? तेरे वालिदैन का हक तू कहाँ भाई अदा करेंगा? अल्लाह अकबर। वालिदा बहुत बड़ी चीज है, वालिदैन बहुत बड़ी चीज है, यह है खिदमत करने का अंजाम। अब आइए मेरे इसी मौजू का दूसरा पहलू मैं आपके सामने रखता हूं। वालिदैन की नाफरमानी करे तो क्या उसका सिला मिलता? उनके दिल दुखाए तो, उनका नाराज करे तो, अगर वालिदैन के साथ बुरा सुलूक करे तो क्या नतीजा मिलता? ये अब तक जितने हदीसा में पेश किया उनकी खिदमत करने का नतीजा। और एक हदीस रह गई, वो बोलकर माँ बाप की नाफरमानी करने का अंजाम क्या, वो भी बोल दूं। और एक हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, बनी इस्राइल के 3 आदमी एक रास्ते से जा रहे थे, बुखारी मुस्लिम की रिवायत। अचानक बारिश आती है, वो तीनों आदमी गार में पनाह लेने के लिए, बारिश और तूफान से बचने के लिए गार में घुसते। एक बड़ी चट्टान लुढ़क कर आकर उस गार के मुंह को ढांक लेती है। अब तीनों कोशिश करते हैं चट्टान हटाने की, वो चट्टान टस से मस नहीं होती, वो तीनों बाहर नहीं निकल सकते। अब थक हार कर नाउम्मीद होकर बैठ जाते हैं, हम तो यहाँ जिंदगी और मौत के इसी आलम में भूखे प्यासे तड़प तड़प कर इसी गार में मर जाएंगे, हम ना देखने वाला भी कौन भी नहीं, हम ना बचाने वाला भी कौन भी नहीं। चलो एक काम करते हैं, जो जो नेकियां हमने हमारी जिंदगी में की, इन नेकियों को अल्लाह के सामने हम वसीला बना के रखते हैं। 3 किस्म के वसीले जायज़ हैं। अल्लाह के अस्मा और सिफात का वसीला तुम बना सकते हो, 90 पर 9 नामों को अल्लाह के सामने, ए गफूरुर रहीम हमारे गुनाहों को माफ़ कर, या अरहमुर राहिमीन हम पर रहम फरमा, या रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन हमारी रिज़्क़ में बरकत दे, अल्लाह के नामों का वसीला मांग सकते हैं, ये जायज़ वसीला है। दूसरा, अल्लाह के नबी कहते हैं किसी नेक जिंदे इंसान से दुआ की दरख्वास्त कराना, मुर्दा इंसान से नहीं, जिंदा इंसान से जो जिंदगी गुजार रहा है तुम्हारे साथ दुनिया में जमीन के ऊपर, उस इंसान से तुम दुआ की रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरे भाई तुम मेरे लिए भी दुआ करो, हज को जा रहे हो मेरे लिए दुआ करो, उम्रे को जा रहे हो मुझे भी दुआ में याद रखो, अय मौलाना मेरे लिए दुआ करो, अय बुजुर्ग साहेब मेरे लिए हक में दुआ करो। इस तरह बोलना ये जायज़ वसीला है। तीसरा, अपने नेक आमाल को अल्लाह के सामने पेश करना, ये भी जायज़ वसीला है। अपने किसी नेकियों को अल्लाह के सामने रखना, या अल्लाह ये जो नेकी का काम किया तुझे खुश करने किया, अय अल्लाह मुझे माफ़ कर, ऐसा बोलना जायज़ है, इसे जायज़ वसीला बोलते हैं। अब इन 3 जायज़ वसीलों में नेकियों को अल्लाह के सामने वसीला बनाने का काम ये गार वाले करते हैं, 3 अफराद। उनमें का एक आदमी अल्लाह के सामने दुआ करते हाथ उठाकर ये रो रो कर अल्लाह के सामने बयान करता है, ऐ मेरे परवरदिगार मैं मेरे माँ बाप का अकलौता बेटा, मैं मेरे माँ बाप का अकलौता बेटा, ऐ अल्लाह मेरा उसूल ये है, मैं बकरियां चराने वाला, मैं जब भी बकरियां चरा कर लाता मेरी बकरियों का दूध निकाल कर सबसे पहले मेरे बूढ़े माँ बाप को पिलाता, उसके बाद मेरे बीवी बच्चों को पिलाता। ये मेरी जिंदगी का उसूल था, मेरे माँ बाप को मैं सबसे बड़ा दर्जा दे रखा था। एक दिन बकरियां चराते चराते काफी दूर निकल गया, वापस आने में देरी हो गई, मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर कर के रात में भूखे प्यासे सो गए। जब मैं लौटा दूध बर्तन में लाया, देखा मेरे माँ बाप सो रहे हैं, मैं उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा, प्याला अपने हाथ में लिए मेरे माँ बाप के सराहने में खड़ा हो गया। अल्लाह तू जानता है उस रात की कैफियत को, उस रात की कैफियत को। मेरी बीवी जाग रही थी जो भूखी थी, दूध का इंतजार कर रही थी, मेरे बच्चे जाग रहे थे जो दूध का इंतजार कर रहे थे, भूख से बिलक बिलक के मेरे कदमों में रोते पड़े थे। अल्लाह
میں میرے اصول کو نہیں توڑا، میرے بچوں کو وہ دودھ پہلے نہیں پلایا، جب تک میرے ماں باپ کو نہ پلاتا تب تک میرے بیوی بچوں کو نہیں دیتا۔ اے اللہ، رات بھر وہ پیالہ لیے میرے ماں باپ کے سرانے ایسے ہی کھڑا رہا، صبح تک میرے بچے روتے روتے میرے قدموں میں سو گئے لیکن ان کو دودھ نہیں دیا۔ جب میرے ماں باپ صبح اٹھے ان کو پہلے دودھ پلایا، بعد میں میرے بیوی بچوں کو پلایا۔ یہ کام میں تجھے خوش کرنے کے لیے کیا۔ اے اللہ، اگر میں چاہتا اس دن میرے ماں باپ کو سوتا چھوڑ کر میرے بیوی بچوں کو بھی پلاتا، لیکن میرے بیوی بچے میرے ماں باپ سے بڑھ کر نہیں تھے، میرے ماں باپ ہی میرے لیے سب سے بڑھ کر تھے۔ اللہ، ان کو چھوڑ کر میں میرے ماں باپ کو نہیں پلا، میرے بیوی بچوں کو نہیں پلایا۔ میرے ماں باپ کو صبح تک ایسے ہی میں رات بھر جاگتے کھڑا رہا، ان کی نیند بھی ڈسٹرب نہیں کیا۔ اللہ، میری یہ چھوٹی نیکی اگر تجھے پسند آئی ہو، آج میں موت کے منہ میں پھنس گیا ہوں، اللہ میری نیکی کو وسیلے کے طور پر پیش کرتا ہوں، مجھے موت کے منہ سے نکال۔ اللہ کا یہ بندہ اپنی نیکی کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اللہ اس کی نیکی کو قبول کرتا ہے اور غار کے منہ کے اس چٹان کو تھوڑا ہٹا دیتا ہے، اتنا بھی نہیں ہٹاتا کہ وہ غار سے تینوں آدمی باہر آ سکے، دوسرا آدمی اپنی نیکی، تیسرا آدمی اپنی نیکی۔ والدین کا فرما بردار موت کے منہ میں بھی پھنسا ہو، اللہ اسے نکال کو باہر لاتا۔ والدین کی خدمت کی ہوئی نیکی موت کے منہ سے بھی بچا لیتی، دنیا کے آفتوں سے بھی بچا لیتی، لیکن ان کی ناراضگی، ان کی نافرمانی دنیا میں بھی ذلیل کر کو رکھ ڈالتی، آخرت میں بھی تباہ و برباد کر کو رکھ ڈالتی، یاد رکھو۔ اب آئیے، آج میں آپ کو والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے یا ان کے ساتھ نافرمانی کرنے کے کیا نتائج ہیں، کیا عالم ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، المعجم الطبرانی کی حدیث، عن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل الذنوب یغفر اللہ منها ما شاء اللہ الا عقوق الوالدین فإنه لیجعل لصاحبه فی الحیات قبل الممات۔ اللہ تعالی دنیا کے وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے گناہوں میں والدین کی نافرمانی کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ آخرت میں عذاب دینا تو دیتا ہی ہے، لیکن اس کی موت سے پہلے والدین کی نافرمانی کا عذاب دنیا ہی میں اللہ اسے دے دیتا ہے۔ انہیں مرنے سے پہلے دنیا میں چلا مزہ چکا ڈالتا، والدین کے ساتھ ناسلوک، اگر ناروا سلوک کرے، بدتمیزی پن کرے، ان کا دل دکھائے، دنیا کی مخولہ ہے نہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا اپنے والدین کے ساتھ تم سلوک کرو گے نا، تمہارے بچے اس سے بھی برا سلوک تمہارے ساتھ کریں گے۔ یہ حدیث رسول ہے، اللہ کے نبی کی فرمان ہے یہ، کہ یاد رکھو حقوق اللہ کے معاملے میں کیے جانے والے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، لیکن حقوق العباد کے گناہوں میں، والدین کی نافرمانی کے گناہوں کو آخرت میں تو عذاب دے گا، لیکن اس کی موت سے پہلے دنیا میں اللہ اسے مزہ چکا ڈالتا۔ یہ لے مزہ چک، تو جیسا تیرے والدین کے ساتھ سلوک کریا تھا، دیکھ تیرے بچے آج تیرے ساتھ کیسا سلوک کر رہی۔ اس بات کی امید نہیں رکھنا اپنے والدین کے ساتھ جھگڑا کر کے، بدتمیزی کر کے، گالی گلوچ کر کے، گھر سے نکال کے میرے بچے مجھے اچھے دیکھیں کرنے کی کبھی امید نہیں رکھنا۔ جو سلوک تم اپنے والدین کے ساتھ کرو گے، جو بیج تم بچپن میں بوؤ گے، آم کا بیج بوؤ گے تو بڑا درخت ہونے کے بعد آم کے پھل کھاؤ گے، کانٹے کا بیج بوؤ گے، کانٹے کا درخت بن کر کانٹے ہی تم کو بڑے ہو کر چبھیں گے۔ کانٹے کا بیج بو کر آم کھانے کی امید مت رکھنا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ بے شک 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ ثلاثۃ قد حرمہ اللہ علیہ الجنہ ووجبت علیہ النار۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں،
अबू दाऊद, इब्ने माजा, तिरमिजी की यह हदीस। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, अल्लाह ताला जन्नत इनके ऊपर हराम कर दिया, जहन्नम इनके ऊपर वाजिब कर दिया। जन्नत को हराम कर दिया, जहन्नम को वाजिब कर दिया। कौन हैं ये लोग? नंबर 1, उकूकुल वालिदैन अल आक, माँ बाप का नाफरमान। मुदमिनुल खमर, हमेशा शराब पीने वाला। व दयूस, और दयूस जिस पर अल्लाह जन्नत हराम कर दिया, जहन्नम अल्लाह वाजिब कर दिया, जन्नत को अल्लाह हराम कर दिया। दयूस किसे बोलती? अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी वालिदा को बेपर्दा सरे आम बाजारों में लेकर घूमने वाला, बेपर्दा लेकर घूमने वाला। बीवी बुर्खा नहीं कर रही, बेटी नकाब नहीं डाल रही, माँ बेहयाई से बनसवर को जा रही, बहन अय्याशी कर रही, इन्हें भाई करने वाला, इन्हें बाप करने वाला, इन्हें बेटा करने वाला, इन्हें शोहर करने वाला, बेगैरत बन को तमाशा देख ले बेटा, ये क्या न्यू फैशन ले चलता सब भी जगह। वो दयूस, ऐसा दयूस जो अपने माँ बेटी बहन के पर्दे की परवाह नहीं करता, उनकी अय्याशी पर खामोशी इख्तियार करता है, ऐसे दयूस पर अल्लाह जन्नत हराम कर दिया, जहन्नम अल्लाह ताला वाजिब कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक ये हुआ दयूस, मुदमिनुल खमर, हमेशा शराब पीने वाला। एक बार शराब पिया, अल्लाह से तौबा करया, अल्लाह माफ़ करता। दूसरी बार शराब पिया, अल्लाह से तौबा कर रहा, अल्लाह माफ़ करता। तीसरी बार शराब पी रहा, अल्लाह से फिर माफ़ी मांगया, अल्लाह माफ़ करता। लेकिन चौथी बार शराब पी को अल्लाह के सामने आको माफ़ कर, अल्लाह बोले तो अल्लाह हरगिज़ नहीं माफ़ करता, हरगिज़ नहीं माफ़ करता। क्यों? अल्लाह की मग़फ़िरत को मजाक बना लिया इन्हें। यहाँ पीता कहते वहाँ माफी मांगता कहते, यहाँ पीते रहता कहते वहाँ माफी मांगता रहता। अल्लाह एक बार माफ करता, 2 बार करता, 3 बार करता, क्या कि बंदा गलती में पी लिया रहंगा, किसी के बहकावे में आ गया रहंगा, दोस्ता जबरदस्ती पिला दिया रहंगा। एक बार माफ, 2 बार माफ, 3 बार, चौथी बार अल्लाह एडवांस में बोल डाल रहा नहीं माफ कर दूंगा, तो नहीं माफ करता। फिर चौथी बार पीएस वाले क्या करता? जत्ता उन्हें पिएंगा अल्लाह नहरुल खबाल जहन्नम का वत्ता पिलेंगा, एक चुस्की पींगा नहरुल खबाल, एक चुस्की पिलेंगा, एक कतरा शराब पींगा अल्लाह जहन्नम का एक कतरा नहरुल खबाल पिलेंगा। पूरी एक बाटल उठेगा अल्लाह पूरी बाटल भर को नहरुल खबाल पिलेंगा। सहाबा ने पूछा ये नहरुल खबाल क्या है अल्लाह के नबी? नबी बोले जहन्नमियों का गला हुआ सड़ा हुआ खून और पीप, इतना बदबूदार, इतना गरम, इतना खतरनाक, अगर वह नहरुल खबाल का एक कतरा अल्लाह दुनिया में टपका दे, पूरे दुनिया के इंसान, चरिंदे परिंदे, हैवान, जानवर, दुनिया बेहोश हो जाएगी, इतना बदबूदार वो नहरुल खबाल। और गर्म इतना, जब जहन्नमी प्यास से परेशान होकर चीख मारेंगे हम ना पानी दो, ये पीने के वास्ते अल्लाह देता, वो खाली पीने के वास्ते प्याले को सामने लाए तो गर्म चाय में से भापा निकलती देखी तुम्हें, वो पानी में से नहरुल खबाल से जब भाप एक बार निकलेगी मुंह को लगेगी, पूरी मुंह की चमड़ी निकल को प्याले में गिर जाएगी। पीने के लिए मुंह को लगेगा, इतना जहर आलूद, इतना जहर आलूद, पेट के अंतड़ियां पूरे कट को पैखाने की जगह से निकल जाए। अल्लाह बोलता एक बार पिया माफ, 2 बार पिया माफ, 3 बार पिया माफ, चौथी बार पिया नहरुल खबालिस तुझे डालने का बोल रहा अल्लाह ताला। जहन्नम की टानिक, खतरनाक टानिक, पॉइजन नुमा टानिक अल्लाह पिलाता, इसीलिए शराब मत पियो। दूसरे किस्म के लोग जिन पर अल्लाह जन्नत हराम कर दिया, जहन्नम वाजिब कर दिया। तीसरी किस्म के वल आक, माँ बाप का नाफरमान। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं 4 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनके घरों में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नहीं आते। नंबर 1, जिस घर में शराबी रहेगा अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आते। नंबर 2, जिस घर में माँ बाप का नाफरमान रहेगा अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आते। नंबर 3, जिस घर में जिना करने वाला जानी रहेगा उस घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नहीं आते। शराबी, माँ बाप का नाफरमान, लेकिन रोज भी जिना कर रहा, रोज भी शराब पी रहा, रोज भी वालिदैन को गाली गलौज कर रहा, दिल दुखा को उनके साथ झगड़ा कर रहा, रब के रहमत के फरिश्ते नहीं आते उस घर में।
चौथा, जिस घर में तस्वीर रहती, कुत्ता जिस घर में रहता, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते ने नहीं कुत्ते पालने हैं, कुत्ते की कदर है, इंसान की कदर नहीं, भीख देने पैसे नहीं। अल्लाह के नबी कहते हैं जिस घर में कुत्ता रहेगा रब के रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अच्छा, रब के रहमत के फरिश्ते नहीं आने का नुकसान क्या, आने का फायदा क्या? अल्लाह के नबी क्या बोल रही हैं? उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में वालिदैन का नाफरमान रहेगा, शराबी रहेगा, जानी रहेगा। क्या नुकसान क्या भाई? नहीं आए तो चले गए तो नुकसान क्या? अल्लाह की रहमत ही नहीं आती उस घर में। अल्लाह की रहमत तुम्हारी कमाई में बरकत नहीं, रब की रहमत नहीं। एक दूसरे को, जहां अल्लाह की रहमत नहीं आती उस घर में एक दूसरे को देखे। माँ बाप की पहले कदर करना सीखो जी, रब के रहमत के फरिश्ते आते। अल्लाह की रहमत जहां रहती, ये शैताना के ज़हमता नहीं रहते उस घर में। पहले वालिदैन की कदर करना नहीं सीखे, इसीलिए एक दूसरे को नहीं होता तुम ना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह अहक़ाफ के 15वीं आयत में बयान करता है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना, हमने इंसान को वसीयत किया कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करे। हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा, इसलिए कि हमल के अय्याम में भी वो दर्द बर्दाश्त करती है और बहुत ही ज्यादा दर्द बर्दाश्त करके वो बच्चे को जन्म देती है। वह हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, उसके हामिला के अय्याम और उसके दूध छुड़ाने के अय्याम कुल 30 महीने होते। सलासून शहरा, 30 महीने की मुद्दत होती है जो अपने माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए रखती है। जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होता पेट में उठाए फिरती है। 30 महीने बच्चे का पीछा नहीं छोड़ती वालिदा, अपने जिगर से लगा को रखो, उसे पाल को बड़ा करती। फिर अल्लाह क्या बोल रहा, हत्ता इज़ा बलगा शुद्धहु व बलगा 40 सना, यहाँ तक कि ये बच्चा बड़ा हो जाता है, 40 साल का हो जाता है। कौन? यही बच्चा बड़ा होता 40 साल का होता। फिर उन्हें क्या बोलता अल्लाह के सामने, क़ाला रब्बी, अय मेरे परवरदिगार, रब्बी औज़िअनी अन अशकुर निअमतकल्लती अनअमतु अलैया व अला वालिदैया अन अअमल सालिहन तरज़ाहु वअस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अय अल्लाह, मैं तेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि तूने मेरे ऊपर इनाम किया, मेरे वालिदैन पर इनाम किया। अय अल्लाह, मैं नेक अमल करना चाहता हूँ, तू इसे कबूल फरमा, मेरी ज़ुर्रियत के लिए इसे कबूल फरमा। अय अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ तेरी जानिब क्योंकि मैं मुसलमानों में से हूँ। ये फरमाबरदार बेटे के बारे में अल्लाह ने कहा। अपने वालिदैन के लिए वो दुआएं करता है, अपने वालिदैन के हक में वो दुआएं करता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, एक माँ अपने पेट से 10 बच्चों को पैदा करती है, 10 बच्चों को पैदा करती है और 10 बच्चों को बड़ी खुशी से अपने सीने से लगाकर पाल कर बड़ा करती है। गौर से सुनना मेरी ये बात, भोनगिर के मेरे भाइयों मेरी बहनों, गौर से सुनना। एक माँ 10 बच्चों को पैदा करती है, हर बच्चे को अपने जिगर से लगाकर पालती है, बेटा और बेटी में तमीज़ नहीं करती। ये लंगड़ा लूला बच्चा, वो अच्छा अक्ल वाला बच्चा, दोनों में तमीज़ नहीं करती। वो भी उसका जिगर का टुकड़ा है, वो भी उसका जिगर का टुकड़ा है। सबको बराबर खिलाती है, सबको बराबर पालती है। अगर उसके पास पैसे ना भी रहे, मजदूरी करके लाती है, लेकिन अपने बच्चों को पाल कर बड़ा करती है। बच्चों को मजदूरी करने नहीं देती, बच्चों को मेहनत करने नहीं देती। बच्चों की तबीयत बिगड़ी रहती है, खुद माँ की तबीयत डबल बिगड़ी है। अपने पेट के लिए दवा नहीं लेती, लेकिन बच्चे के लिए सबसे पहले दवा लेती है। 10 बच्चों को पाल कर बड़ा करती है। जब यही 10 बच्चे बड़े हो जाते हैं तो 10 बच्चों के लिए ये एक माँ भारी पड़ जाती है। ये एक माँ इतनी भारी पड़ती है, अब 10 बच्चे बारी बारी माँ के लिए डेट फिक्स करते हैं कि तू ले जा, 1 महीना में देख लिया, इसका हगना मुतना मेरे हाथ से उठाने नहीं हो रहा। मेरी बीवी तो करती नहीं बोल रही, मेरी बीवी छीती भी नहीं करी, कितने दिन देखना बुड्ढी को, मेरा डेट हो गया, अब आको बुला ले, जाता क्या? नहीं बोले तो ऑटो में मैं उठा लेकर तेरे घर के सामने पटक को चले जा। तो
बुढ़ी को ऑटो में बिठाए, लग गए, बड़े भाई के घर के सामने पट गया, फोन करया, मेरा डेट हुआ, अब तेरा डेट शुरू होता, ले कर ले। अब 1-2 दिन देख बा, मैं बाहर हूँ, मैं नहीं हूँ, मेरी बीवी भी देखती नहीं करी, मेरे हाथ से नहीं होता, मैं अरे पैसे किसे होना, उसकी बदबुरी बात से मेरे बच्चे बस हो गई, मेरे बच्चे तंग आ गई, मेरी बीवी तो देखती नहीं करी, देखता नहीं देखा, जा छोड़, क्या तो भी कर। अब इन्हें उसके पास, उन्हें उसके पास, जैसे फुटबॉल प्लेयर ग्राउंड में एक फुटबॉल को 10 जने मिलकर जैसे लाता से मार को गोल करती ना, अपनी बूढ़ी वालिदा, उसके हगना मूतना, उसका पेशाब पाखाना जो उसके बस में नहीं रहता, 10 बच्चे मिलकर वालिदा को फुटबॉल बना लेते हैं और उसे अपने पैरों की रद्दी बना लेते हैं, ठोकरे मार कर ले जाकर घरों के सामने पटक कराते। भूल गए यही वो वालिदा थी जो बचपन में अपने जिगर से लगा को पाल को बड़ा करी, अपने सीने का दूध पिला को तुमने बड़ा करी। अगर बड़े होकर तुम्हें ऐसा उसके साथ सुलूक करती मालूम रहता, नल्डी दबा को तुम्हारी गर्दन मुरोड़ को खबर में लग जा गाड़ डालती थी बचपन में वो तुम्हारी वालिदा। अरे तुमने आराम नहीं तो रात भर रो को अल्लाह के सामने मुसल्ला बिछा कर नमाजा पढ़ दुआ करती थी। भूल गए? आज आप अपनी वालिदा के साथ इतना बुरा सुलूक करते हो। लग जाता कि नहीं रे बुढ़े को, तो लग जाता कि नहीं रे बुढ़ी को, तो मरती तो भी नहीं रह रही ने, कौन देखती रही इसे? हमने अपनी आंखों से देखा कई लोगों को, ना बेटा नजदीक आता, ना बहू नजदीक आती, ना पोतरे नजदीक आती, ना पोतरियां नजदीक आती। एक अलग कमरा लेको जेल में जैसे कैदी को रखा जाता, बेड़ियां बांध को बूढ़ी को रखो। अब उसे बड़े बूढ़ों के पैम्पर्स जो आते हैं हग्गिस चढ़ाने के, अब वो चढ़ाने वाली एक औरत मुंह को मास्क लगा ले को बदबुरी बास उसे भी नहीं होती, उन्हें चढ़ा रही, लाखों दिन में सुबह में एक बार शाम में एक बार पैम्पर्स बदलाती, गंजीला को रखती, पीती की मरती की भूखी रहती की, उसे मनाने वाला नहीं खिलाने वाला नहीं। लेक जग गंजी सामने पट के पैम्पर्स बदलाए, दूर खोड़क पानी लेक नल से मारे और दूसरा पैम्पर्स चढ़ाए और उसी बेड़ियों में डालकर उसे बूढ़ी माँ को कमरे में रखे चले गए। हमने अपनी आंखों से देखा ऐसा मंजर। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। एक दिन आएगा तुम भी बूढ़े हो जाओगे, मेरे रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ताला इससे भी बुरा सुलूक तुम्हारे जरिए कराएगा, तुम्हारे बच्चों के जरिए तुम्हारे साथ अल्लाह कराएगा। अरे 10 बच्चे एक माँ को बोझ नहीं होते, लेकिन 10 बच्चों को एक माँ बोझ बन जाती, एक बाप बोझ बन जाता है। ठुकराते हैं माँ बाप को। अरे तुम जब छोटे थे तुम भी ऐसे ही हग लेते थे, तुम भी ऐसे ही मुद्दे थे। तुम्हारी माँ ने एक दिन भी अपने मुंह पर मास्क लगाकर तुम्हारे पेशाब पाखाने को साफ नहीं किया, खुशी खुशी वो साफ करती थी। तुम्हारे पेशाब पाखाने को वो महसूस नहीं करती थी, अपने जिगर का टुकड़ा समझ के साफ करती थी और तुमको पाउडर लगाकर, क्रीम लगाकर, अच्छे कपड़े पहना के अपने सीने से लगा के रखती थी। आज उस माँ का पेशाब पाखाना तुमको इतना तकलीफ दे रहा, ले जाके पटकते हो। अरे इंतहा तो इतनी हो गई, जुल्म की इंतहा तो इतनी हो गई। आज देखो हिंदुस्तान के कैपिटल सिटीज में, हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, ओल्ड एज होम बना कर रखे हैं लोग। ओल्ड एज होम क्या है ये? ओल्ड एज होम जाओ, जाकर कभी देखो, तुम्हारी जमीर अगर जिंदा है जाकर ओल्ड एज होम में उन बूढ़े माँ बाप का इंटरव्यू लो, 1 घंटा उनके सामने बैठकर बात करो। तरस रहे हैं आज वो बूढ़े माँ बाप, हमने ये कौन से सांप को पालकर बड़ा कर दिया, ये कौन से जहरीले नागिन को हमने बड़ा कर दिया। आज हम तरसते हैं जब बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को लाकर पटकता है ओल्ड एज होम में, वो कहते हैं, रोती है, मेरे बच्चे मुझे एक दिन में 1 वक्त का खाना दे दे, तेरे घर में नौकरानी बनकर पड़ी रहूंगी, मुझे इस हॉस्टल में मत पटक, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरे बच्चे मुझे यहाँ मत रख, अगर तू खाना भी नहीं दे सकता गली में भीख मांग के खा लूंगी, मेरे पोतरे पोतरियों को देखकर जिंदगी गुजार लूंगी, मुझे इस हॉस्टल में कैद मत कर। नहीं, मैं नहीं देख सकता तुझे, तेरे लिए पैसे दे दूंगा, तू यहाँ मरना। लाखों से पटक देता और महीना 5,000 10,000 जो ओल्ड एज होम को डालते रहता। क्या करे उन्होंने? पाल को बड़ा करे, तुम ना इंजीनियर बनाए, तुम ना डॉक्टर बनाए, तुम ना बड़ा प्रोफेसर बनाए, तुम्हें भी प्रोफेसर, तुम्हारी बीवी भी बड़ी टीचर, तुम्हें कॉलेज को चले आती, तुम्हारी बीवी भी बड़े डिग्री कॉलेज को चले आती पढ़ाने, माँ बाप को
देखने के लिए टाइम नहीं, माँ बाप को वक्त देने टाइम नहीं। क्या इन्हें भी नौकरी वाला कहते, उन्हें भी नौकरी वाली कहते। बुढ़े माँ बाप को कौन देखना? अगर हमें आए तुम्हारी किरकिरी बातें सुन सकते नहीं, बोले सोच बोलते रहती तुम्हें, ज्यादा किरकिरी करे तो मेरी बीवी बोलती, या तो बुढ़ी रहती ना, मैं रहता हूं, मैं घर छोड़ को जाता हूं, मैं मेरी बीवी को घर से नहीं भगा सकता, तुझे पहले भगा डाल, तू पहले निकल। अल्लाह अकबर। ओल्ड एज होम में जाकर देखो, 1 घंटा उनके साथ बैठकर बातें करो, तुम्हारा कलीजा फटकर बाहर आ जाएगा। वो तरस रहे हैं अपने वालिद, अपने बच्चों की मोहब्बत की खातिर। तुम्हारे पैसे के भिखारी नहीं जी उनो, तुम्हारे खाने के भिखारी नहीं जी उनो, तुम्हारी मोहब्बत के भिखारी हैं, तुम्हारी मोहब्बत को तरस रहे हैं। आज तुम्हारे पास टाइम नहीं तुम्हारे माँ बाप को बात करने, उनकी खिदमत करने, उनके सामने जागो बैठ को हंसते मुस्कुराते उनसे बात करने। वो बचपना था जब तुम अपने वालिदैन से एक एक सवाल 100 बार करते थे। तुम्हारे वालिदैन दीवाना समझ को कभी तुमको नहीं मारे, एक एक सवाल 10 बार करते थे, बार बार माँ बाप सिखाते थे, बोलते थे। मेरे बच्चे इसे चांद बोलती, उसे सूरज बोलती, इसे परिंदा बोलती, उसे चिड़िया बोलती, इसे कौवा बोलती, इसे तोता बोलती, इसे कबूतर बोलती। 10 बार सवाल करे तो भी तुम्हारे माँ बाप ने कभी तुम्हारे सवालों पर चिढ़ा नहीं, गुस्सा नहीं किया। सिखाए, बताए, तरबियत दिए। आज तुम्हारी अम्मा एक बार बोले सो बात, 2 बार बोले तो यत्ता चीख मारती, यत्ता झगड़े करती। अगर बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाता है। बीवी की तबीयत बिगड़ गई, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाता है। माँ बाप 3 दिन से मोशन लगा ले बैठे हैं, 3 दिन से बुखार आया है, 3 दिन से सर्दी खांसी में खांस के मर रहे, लेकिन माँ बाप को दिखाने इसके पास टाइम नहीं। अगर माँ बाप बोल भी दिए, मेरे बच्चे तू कहाँ गया था बेटे, 3 दिन से बुखार है, तेरी बीवी गोला नहीं दे रही, बेटे हम ना दिखा ले। कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं, हाथ मरो, मैं 20 लाख दे तू मेडिकल में। वो बुढ़ा बुढ़ी वो जरा वर्ल्ड ज्यादा हो गई एज, उनको जरा बुखार आ को से गोलियां देता, देवा सस्ते गोलियां लिया कि मेडिकल से लाख पटकिया की। ये सुलूक वालिदैन के साथ, ये बुरा सुलूक। वो तुम्हारी बीवी बच्चा को मेडिकल से लाएंगे आप लोग। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह बनी इसराइल 24वीं आयत जो 23वीं आयत फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़ियू वला तनहरहुमा की जो पेश किया था मैं, अगर तेरे माँ बाप दोनों बूढ़े हो जाएं, दोनों में से कोई एक बूढ़े हो जाएं, एक इंतकाल हो जाए, तो उनके सामने उफ तक मत कहो और उनसे नरमी से अदब से बात करो। ये थी 23वीं आयत। 24वीं आयत में अल्लाह ताला कहता है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, उनके सामने शफ़क़त के साथ, आजिज़गी के साथ झुके रहना और उनके लिए ये दुआ करना। वक़ुल लहुमा क़ौलन, और उनके लिए दुआ करना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। है अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जैसे कि बचपन में उन्होंने मुझे पाल कर बड़ा किया। ये दुआ करना, माँ बाप के लिए दुआ करना। आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते, कौन सी पढ़ी पढ़ाती? ओनली गारमेंट पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी पढ़ाते। हमारा स्टाइल हो, बच्चा मौलवी साहब हुआ तो क्या बनता, वो मस्जिद में इमामत कर लेकर रहता, 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की देते। यहाँ से निकाले वहाँ जाता, वहाँ से निकाले वहाँ जाता। क्या मिलता उसे? आलिम बने तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, टीचर बनेंगे। बैठे जगह 50,000 महीने को कमा खा था। ये मेंटालिटी माँ बाप की, ये सोच, ये बात याद रख लो। कोई बच्चे तुम ना नहीं पालते, तुम ना पालने वाली ज़ात अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला है। तुम्हारा बच्चा इंजीनियर बने दे तो भी अल्लाह पालता, तुम्हारा बच्चा भिखारी बने दे तो भी अल्लाह तुम ना पालता। मेरे बच्चा इंजीनियर बने तो हमें रोटियां खाती, नहीं कि तू भूखे मरती, नामुमकिन। तुम्हारी मुकद्दर की रोजी रोटी अल्लाह पहले सही कर डाला। तुम्हें इंजीनियर बनाओ, इस्लाम तुम्हें इंजीनियर बनाने से मना नहीं करता। तुम्हें डॉक्टर बनाओ, लायर बनाओ, क्या तो भी बनाओ, लेकिन सबसे पहले उसे दीन की तालीम दो, उसे दीनदार बनाओ। हमें दीनदार नहीं बनाते, दुनियादार पहले बना डालती। यत्ता बनाती, उन्हें बड़ा इंजीनियर कहते, बाप मर गया कहते,
बाप का जनाजा मस्जिद में है, उन्हें इनशर्ट डाल ले को, बूटा पहन ले को बाहर खड़ा, आ बात तुम्हारे बाबा का नमाज वो कैसा पढ़ती मुझे मालूम भी नहीं, वो नमाज जनाजा आता भी नहीं, तुम्हें तो पढ़ लो, मैं दफन करने में वो ज़रा 4 कदम चलता हूँ, साथ में होना रहता, मुझे क्या भी आता नहीं हो, जाओ पढ़ ले जाओ। क्या करती है ऐसी औलाद को लेको, क्या करती जी ऐसी औलाद को लेको। इंजीनियर कहते हैं बाप का नमाज जनाजा पढ़ने नहीं आता। और एक चैलेंज कर को मैं बोलता हूँ अपने बयानों में, अक्सर मैं चैलेंज करता हूँ, एक बात बोलता हूँ, ये जितने भी कैपिटल सिटीज़ हैं इंडिया के, मैं दूसरे कंट्री की बात नहीं करता, हमारे इंडिया की बात मैं करता हूँ, जितने भी कैपिटल सिटीज़ हैं इंडिया के, मेरा चैलेंज इस बात का, जाओ जाकर ओल्ड एज होम में उन बूढ़े माँ बापों को इंटरव्यू लो, पूछो, उनकी लिस्ट चेक करके देखो, बड़े बड़े इंजीनियर के माँ बाप मिलेंगे ओल्ड एज होम में आपको, बड़े बड़े लायरों प्रोफेसरों के माँ बाप मिलेंगे आपको, और बड़े बड़े डॉक्टरों, बड़े बड़े दुनिया के डिग्रियां हासिल करे वाले के माँ बाप मिलेंगे आपको। नहीं कहते बेटा अमेरिका में रहता, कहते बहू अमेरिका में रहती, कहते माँ बाप को यहाँ बुढ़ा बुढ़ी को लागो सटिंग, कहते बड़े बड़े दुनिया के डिग्रियां हासिल करे सोलह के माँ बाप जरूर मिलेंगे आपको ओल्ड एज होम में। लेकिन अल्लाह के घर में बैठकर कहता हूं मैं, कसम उस अल्लाह की, पूरे ओल्ड एज होम में एक भी हाफिज कुरान या आलिम दीन के वालिदैन आपको किसी ओल्ड एज होम में हरगिज नहीं मिलेंगे। किसी भी ओल्ड एज होम में किसी एक हाफिज कुरान के वालिदैन को आप बता दो, मेरा चैलेंज इस बात का, एक आलिम और फाजिल के वालिदैन को आप बता दो, मेरा चैलेंज इस बात का, हरगिज नहीं बता सकते आप। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हरगिज नहीं बता सकते आप। क्यों नहीं बता सकते? इसलिए कि मदरसे में छोटे बचपन से लेकर बड़े होने तक उसे इस बात की ट्रेनिंग दी जाती, तेरे माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, और तेरा बाप जन्नत के 8 दरवाजों में से बीच का दरवाजा है, तू चाहे तो इसे जन्नत को बचा ले या उनकी नाफरमानी करके उनका दिल दुखा को तेरी जन्नत को बर्बाद कर ले। मदरसे में सिखाया जाता, कोई हाफिज कुरान, कोई आलिम दीन अपनी जन्नत को अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहता, अल्हम्दुलिल्लाह हरगिज नहीं चाहता। हर वालिद, हर हाफिज कुरान, हर आलिम दीन अपने वालिदैन को हत्तल मखदूर अपने पास रखकर देखने की कोशिश करेगा। ओल्ड एज होम में इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हरगिज नहीं छोड़ेगा। मैं बताना यह चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, लायर बनाओ, क्या तो बनाओ, कम से कम उसे दीन की तालीम तो भी दिलाओ। आलिमा नहीं बना क्या हुआ, हाफिज नहीं बना क्या हुआ, दीन की तालीम तो भी दिलाओ जी। उसके अंदर इतनी तो अक्ल आ जाए, मेरे माँ बाप क्या चीज, मेरे माँ बाप का रुतबा क्या, मेरे माँ बाप का दर्जा है, इतना तो भी मालूम होंगे उसे। अगर ये नहीं मालूम कराएंगे मर जाएंगे। एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन जितने दीन की खिदमत करेगा, जितने लोगों को कुरान पढ़ कर सुनाएगा, जितने हदीसें लोगों को सिखाएगा, इन तमाम नेकियों का सवाब इसके वालिदैन को अल्लाह अता करेगा। तुम्हारा बच्चा जितने लोगों को सुधारेगा, जितने बयाना करके उम्मत को इस्लाह का काम करेगा, दावत और तबलीग से जितने लोगों को हिदायत का जरिया बनेगा, एक एक आयत पर, एक एक हदीस पर अल्लाह ताला वो तमाम अजर उसके वालिदैन को देगा। मैं जितनी भी दीन की खिदमत कर रहा हूँ, मेरे दावत और तबलीग का, मेरे कुरान की आयतों का, मेरे हदीसों का सवाब अल्लाह 3 आदमियों को देगा। नंबर 1 मेरे माँ बाप को देगा, नंबर 2 मेरे पढ़ाए हुए उस्तादों को अल्लाह देगा, नंबर 3 मुझे पढ़ाने की खातिर जिन्होंने पैसा खर्च किया अल्लाह उनको देगा। 3 आदमियों को अल्लाह इसका अजर देगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये सवाब हम गमाते हैं दुनिया में बैठ के। तो सलाम फरमाए बयान फरमाते हैं, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदैन व सख़तर रब्बी फी सख़तल वालिदैन। तेरे माँ बाप अगर दुनिया में राजी रहेंगे, अल्लाह ताला भी तेरे से राजी रहेगा। तेरे माँ बाप अगर तुझसे नाराज रहेंगे, तेरा अल्लाह भी तुझसे नाराज हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मस्जिद में बयान देने के लिए आते हैं, मिंबर पर कदम रखते हुए आमीन कहते हैं, दूसरे सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो आमीन कहते हैं, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो आमीन कहते हैं। सहाबा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, कभी आपने 3 सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आमीन 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 नहीं कहा, आज आपने ऐसा क्यों कहा? नबी अलैहिस्सलाम उसकी तफसील बयान करके कहते, सुनो मेरे सहाबा, जब मैं पहले सीढ़ी पर कदम रखा
تو جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ اس انسان کو برباد کرے، غارت کرے جو اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کیا بلکہ ان کا دل دکھایا، اللہ اسے غارت اور برباد کرے۔ بد دعا کرنے والے جبرائیل جو سارے فرشتوں کے سردار، آمین بولنے والے اللہ کے نبی جو سارے انبیاء کے سردار، قبول کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بد دعا کر رہی جبرائیل، آمین بول رہی ہے اللہ کے نبی، قبول کر رہا اللہ تعالیٰ۔ کیا اس انسان کی بربادی میں کیا تو بھی بچ کو رہتا؟ بے شک برباد نہیں، برباد اٹھ لگ جاتا انہیں، جو اپنے والدین کو دل دکھاتا، اپنے والدین کی نافرمانی کرتا۔ اللہ کے واسطے اپنے والدین کا دل مت دکھاؤ، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ والدہ ایک ایسی چیز ہے، والد ایک ایسی چیز ہے جو تمہاری دنیا بدل سکتی۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ دعوت المظلوم، ثلاثۃ مستجاب الدعوات، 3 قسم کے لوگ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ ان کی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا اللہ ہمیشہ قبول کرتا ہے۔ ودعوت المسافر، مسافر کی ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ حرام خور مسافر کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا، حلال خور مسافر کی ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ ودعوت الوالد علی ولدہ، اور ایک باپ کی دعا اللہ اپنے بچوں کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک باپ کی دعا اپنے بچوں کے حق میں اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ باپ کی دعا تمہاری دنیا بدل سکتی ہے، باپ کا دل نہ کو دکھاؤ۔ آج بیٹا کیا کرتا؟ شادی کر لے آیا کی، ساس سسرے ملے کی، کل پرسوں ملے سو ساس سسرے کو یہاں بٹھاتا۔ بوڑھے ماں باپ جو پال کو اتنا بڑا کر کو اسے پڑھا کو لکھا کو اس قابل بنائے، ان کو ساس سسرے کے سامنے نکال کو سڑتا۔ کیسی عقل بھئی تیری؟ کہاں ہے بھئی تیرے اندر انسانیت؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اور والدہ جو بچے کی دنیا بدلنے والی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کا اصلی نام محمد بن اسماعیل، بخارا کے رہنے والے، اسی لیے ان کو بخاری بولتے۔ بخارا کا تو گاؤں کا نام، بخارا کے رہنے والے بخاری بولتے ہیں ان کو، لیکن ان کا اصلی نام کیا؟ محمد۔ ان کے ابا کا نام اسماعیل، محمد بن اسماعیل۔ انہوں جب پیدا ہوئے اندھے پیدا ہوئے، نابینا پیدا ہوئے، ان کی آنکھوں کی بصارت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے والدہ ان کے اپنے بچے کے لیے رات میں تہجد میں اٹھ کر دعا مانگتی تھی۔ امام بخاری کی والدہ کہتی تھی اللہ میرے بچے کو آنکھ دے دے، اللہ میرے بچوں کی آنکھوں کی بصارت دے دے، اللہ میرے بچے کو تیرے دین کا خدمت گزار بناؤں گی، اللہ عالم دین بناؤں گی، اللہ رو رو کر مانگتی تھی دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اماں کی دعا قبول کر کو نابینا اندھے امام بخاری کو اللہ بینا والا بنا دیا، دیکھنے کے قابل اللہ بنا دیا۔ کیا سمجھیں تمہیں ماں کی دعا؟ شیخ عبد الرحمن السدیس کونینو، امام حرم، بہت سارے ہیں امام حرم، ان تمام امام حرم کے سب سے بڑے امام انہوں، متولی امام بولتی ہیں ان کو، سینئر امام، 40 سال کا عرصہ ہو گیا ان کو امام حرم بنے۔ اپنے خطبے میں کتنے کی بار بولی ہے واقعہ، چھوٹا بچہ 9 سال کا پکا شریر بچہ میں، میرے گھر میں ایک بار مہمان آ گئے، میری اماں غریب، کھانا پکانے بھی ہمارے گھر میں پیسے نہیں رہتے تھے، کہتے کہ دن جمع کو رکھ لیے سو پیسے بھیج کو گوشت منگا کو مہمانوں کو پکا رہی تھی میری اماں، گوشت کا سالنا۔ میں کیا کریا، باہر گیا، مٹھی بھر کو مٹھی اٹھا لے کہا کو سالن میں ڈال ڈالیا۔ آج ہمارے گھر میں کرے رہتے تو ہمارے اماں لکڑی ٹوٹے سرگا مارتی تھی امنا۔ امام شیخ عبد الرحمن السدیس روتے ہوئے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، خطبہ جمعہ میں امام حرم مکہ مکرمہ کے جمعہ کے خطبے میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ گھڑی کون سی تھی، وہ گھڑی کیسی تھی، اتنی بڑی شرارت پر میری ماں نے مجھے ڈانٹنے کے بجائے مارنے کے بجائے مجھے یہ بولی جا تجھے اللہ کعبے کا امام بنا دے۔ میں 9 سال کا چھوٹا بچہ، میری ماں کیا بولی، چل نکل یہاں سے، اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔
अल्लाह अकबर। वो कौन सी घड़ी थी मालूम नहीं, अल्लाह मेरी माँ की दुआ कबूल कर लिया। आज अगर मैं काबे का इमाम हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की दुआ के बदौलत यहाँ काबे का इमाम बना, वरना मेरी औकात नहीं थी कि मैं काबे का इमाम बनता। माँ की दुआ, माँ की दुआ। सही बुखारी के अंदर एक वाक़िया है जुरैज का। बड़ा आबिद व जाहिद था वो, बड़ा नेकोकार था वो, और अपनी इबादत में मशहूर था वो। पहाड़ के ऊपर एक छोटी झोपड़ी की कटिया बनाया था, इबादत करता था, बड़ा नेकोकार था वो। इबादत में इतना मशगूल कि उसकी बूढ़ी वालिदा पहाड़ चढ़ते चढ़ते अपने बेटे के पास आकर आवाज लगाती है, ओ मेरे बेटे जुरैज, ओ मेरे बेटे जुरैज। बूढ़ी वालिदा के सवाल का जवाब देना जुरैज को मालूम नहीं था। नफिल नमाजें पढ़ रहा है, नफिल नमाज में अगर वालिद आवाज दे, नफिल नमाज तोड़कर भी अम्मा अब्बा के सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये हदीस उसको मालूम नहीं थी, ये इस्लाम का मसला उसे मालूम नहीं था। बनी इसराइल का एक आबिद व जाहिद था। वह सोच में पड़ गया, मेरी माँ मुझे बुला रही है, अगर मैं माँ के सवाल का जवाब देता हूं तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, अगर नमाज कंप्लीट करता हूं तो माँ नाराज हो जाएगी। क्या अल्लाह को नाराज करूं या माँ को नाराज करूं? चलो चलो, मेरी माँ से बड़ी तो मेरा अल्लाह है, मैं अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। ये सोचकर मैं सवाल का जवाब नहीं दिया और अपनी नमाज कंटिन्यू रख लिया। बेटे को एक बार सवाल करती है, 2 बार आवाज लगाती है, 3 बार आवाज लगाती है, बेटे की जानिब से कोई रिस्पांस नहीं आता। माँ नाराज होकर लौट जाती है। दूसरे दिन बूढ़ी माँ पहाड़ चढ़ चढ़ के आती है मेहनत करके, अपने बेटे को आवाज लगाती है, ओ मेरे बेटे जुरैज, तेरी खिदमत की मुझे जरूरत है। ऐ मेरे बेटे जुरैज, मेरे सवाल का जवाब दे दे, मेरी आवाज पर जरा लब्बैक बोल दे। बेटा तशवीश में, आज भी नमाज की हालत में माँ आ गई। माँ को जवाब देता हूँ, अल्लाह नाराज होगा, नमाज कंप्लीट रखता हूँ, माँ नाराज होगी, क्या करूँ? चलो, माँ से बढ़कर अल्लाह है, वो नमाज को कंप्लीट रखता है, माँ के सवाल को केयर नहीं करता, जवाब नहीं देता। दूसरे दिन भी चले गए, तीसरे दिन आवाज देती है, कोई जवाब नहीं मिलता। माँ इतनी नाराज हो गई, अब यहाँ माँ बद्दुआ करती है। माँ बद्दुआ करती है, अल्लाह मेरे इस बेटे को उस वक्त तक मौत न देना जब तक किसी बदकार या जानिया औरत की सूरत ये नहीं देख लेता, इसे मौत नहीं देना। ये बोलकर मां चली गई। हुआ क्या, उस गांव में लोग ये कहने लगे, कौन है जो इस आबिद और जाहिद की इबादत में खलल डाल सके? ये औरत मशहूर है जो अपने हुस्न जमाल से फेमस है, बड़ी खूबसूरत है। उस औरत से कहते हैं, क्या तू जुरैज की इबादत में खलल पैदा कर सकेगी? कई कई दिन बीत जाते हैं, वो नीचे नहीं आता, इतनी इबादत करता है, क्या उसके इबादत में तुम खलल डाल सकोगी? हाँ, मैं डाल सकूंगी, मेरे हुस्न जमाल से, मेरी खूबसूरती से उसे माइल करके पागल कर दूंगी। गई, बन सवर के जुरैज के किनारे बैठ गई। वो सलाम फेरता था, फिर उठकर खड़ता था, इबादत करता था, सलाम फेरता था, फिर उठकर, पलट कर भी नहीं देखता था कि मेरे बाजू कौन आकर बैठा है। कई देर इंतजार करी, वो पलट कर एक झपक भी नहीं देखा मेरे खटिया में कौन आकर बैठी है, जवान लड़की, खूबसूरत लड़की, एक बार भी नहीं देखा। अपनी इबादत कंटिन्यू रखा। वो औरत मायूस हो गई, मेरी एक झलक देखने दुनिया तरसती है और मैं बन संवर के तन्हा आकर इसके पास बैठी हुई, पलट कर भी नहीं देख रहा। नाराज हो गई। आ रही थी पहाड़ में, उसी पहाड़ में एक बकरियां चराने वाला चरवाहा था। उस चरवाहे से ये औरत जिना करती है और उसके नुत्फे से ये हामिला बनती है, फिर बच्चा इसे पैदा होता है। सारे बनी इसराइलियों को ये सुनाती है कि इस बच्चे का बाप वही जुरैज है जो इबादत में मशगूल है। सारे लोग जाते हैं और उसकी खटिया को तोड़ देते हैं, उसकी झोपड़ी को तोड़ फोड़ देते हैं और उसे मार मार कर नीचे लाते हैं, घसीट कर लाते हैं। अरे अपने आप को अल्लाह वली बनता क्या? अपने आप को बड़ा शरीफ समझता क्या? हाँ, मुंह काला करने के कामा कर को, जिना कर को, बगैर शादी के एक औरत को बच्चा पैदा कर को अपने आप को आबिद बनता क्या? गांव वालों का फैसला, तुझे फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा क्योंकि तूने
एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी, तुझे फांसी दी जाएगी, बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या तो भी है? जुरैज कहता है हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दो, मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। जुरैज 2 रकात नमाज पढ़ता है, फिर कहता है कहाँ है वो बच्चा जो तुम कहते हो कि वो मेरा बच्चा है, कहाँ है वो बच्चा? ये है वो बच्चा। बच्चे को लाया गया। जुरैज 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करके उस बच्चे के सामने जाकर कहता है, ऐ बच्चे अल्लाह के हुक्म से बता तेरा असली बाप कौन है? अल्लाह के हुक्म से बता तेरा असली बाप कौन है? मन अबू कभी इज़्निल्लाह, कौन है तेरा बाप? अल्लाह के हुक्म से बता। वो मासूम बच्चा, दूध पीता पैदा हुआ बच्चा अल्लाह की कुदरत से बोल उठता है कि कौम वालो, मेरा बाप ये आबिद और जाहिद जुरैज नहीं है, बल्कि इसी पहाड़ में बकरियां चराने वाला फलां चरवाहा मेरा बाप है। ये आबिद मेरा चरवाहा नहीं है, मेरा बाप नहीं है। इतना सुनना था। वो दूध पीता बच्चा जब बोल उठा, जुरैज की सदाकत की गवाही दिया, सारे बस्ती वाले हक्के बक्का हो गए, अपने किए अमाल पर शर्मिंदा हो गए। बाद में उस औरत से सवाल करते हैं, वो औरत अपनी इस बात का तस्दीक करती है, हाँ मेरा बच्चा सच कहता है, जुरैज इस बच्चे का बाप नहीं, वही बकरियों का चरवाहा इस बच्चे का बाप है। अब सारे बनी इस्राइल माफी मांगकर बोलती, अरे जुरैज हम इतनी बड़ी गलती कर दी है, तुम ना मार को तुम्हारी झोपड़ी तोड़ को, अगर तुम कहो सोने की हम तुम्हारा कमरा बनाकर दे देंगे, सोने का कमरा, गोल्ड सोने का कमरा बनाकर दे देंगे। जुरैज ने कहा मेरी वैसी खटिया झोपड़ी वाली बना दो जैसी थी, मुझे किसी सोने के झोपड़ी की जरूरत नहीं है। वो अल्लाह से माफी मांगता है अपने वालिदा की नाफरमानी पर। एक जब माँ की दुआ लगती है, बच्चे की जिंदगी बदल जाती है। जैसे अब्दुर्रहमान अस्सुदैस इमाम हरम की जिंदगी बदल गई, जैसे मोहम्मद इब्ने इस्माइल इमाम बुखारी की जिंदगी बदल गई। जब किसी माँ की बद्दुआ लगती है तो दुनिया में अल्लाह उसे जलील करके छोड़ देता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कहने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं और आपके सामने बयान करूं। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह ताला मुझे और आपको हमारे वालिदैन की कदर करने, उनकी इताअत व फरमाबरदारी करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको उनका इज़्ज़त व एहतराम करके, उनके साथ हुस्ने सुलूक करके अपनी जन्नत को संवारने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।